गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जीओ। गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मौसम का जो मिजाज है उसका प्रभाव तन ते तो पैंदा ही है, पर मन ते भी पैंदा है। जे बहुती गर्मी होवे ते तन ने तो विचलित होना ही होना है, मन भी विचलित होता है। भगती दे विच, सिमरन दे विच, साधना दे विच मन टिकदा नहीं, क्योंकि गर्मी है, तपस है। अजोकी साइंस ने बहुत कुछ साधन साडे सामने रख दिते हैं कि जे गर्मी है मिटा सकते हो इन्हां साधना दे नाल। कूलर है, एसी है, जां पानी ठंडा करके पीना, तपस मिट जाती। पर मन की तपस नूं किवें मिटाई है? क्योंकि तन की तपस होर है, मन की तपस होर है। अज तक एक भी ऐसा साधन नहीं बनिया जो मन की तपस मिटा देवे, बाणी तो सिवाए, सिमरन साधना तो सिवाए। हुण जेकर मैं अर्ज करा, कल तो जिस महीने की आरंभता हुई है वो है सावन का महीना। तो आलमा का कहना है कि सावन के महीने विच जिहड़े जिग्यासू पुरुष हैं उन्हों दे अंदर जिग्यासा पैदा होती है, होर जाप करिए, होर पाठ करिए। किसी कवि दे अंदर कविता का जन्म होता है, क्योंकि ठंडी ठंडी फुहार है, मौसम बहुत चंगा है, किसी न किसी रचना का आविर्भाव होता है। फिर कोई दार्शनिक है, फिलासफर है, ਉਹਦੇ अंदरों भी फिलासफी का जन्म होता है। फिर जिहड़े रसिक पुरुष हैं, बैरागी पुरुष हैं, भगत पुरुष हैं, वो भी अपनी धुन अलापते ने अपनी मौज विच। बाकायदा गुरु नानक साहिब महाराज ने एक गल आखी, नानक सावण जे वसै चहूँ उमाहा होए, नागां मिर्गां मच्छियां रसियां घर धन होए। कि जदों बरसात होवे, बसंत सावण का आगमन होवे, बरसात दी ठंडी ठंडी बूंदां पै रहियां होण ते खुश होंदे ने सप जिहड़े कि खुड विच बैठे होंदे ने कितने कितने दिनों तो, अज खुश होके बाहर निकले ने। पिंडां दे विच सानूं कहंदे सी कि सावन का महीना है, घर तो बाहर नहीं निकलना रात वेले। ये बहुत सारे कीट जमीन तो निकलते हैं, पर कारण की सी कहंदे ने पता नहीं है, पता नहीं। तो उन्होंने अंदर भी एक चाव पैदा है, उमंग पैदा है। नागां मिर्गां जंगल दे विच जिहड़े मृग हैं वो भी नचदे ने, टपदे ने। फिर मच्छियां, जिहड़े तालाब सुक गए ने, जोहड़ सुक गए ने, तो मछलियां दा की होवेगा? जिहड़े जीव पानी दे विच ने वो तड़फदे ने। तो अज जदों बरसात होई तो वह मच्छियां भी मस्तियां करदियां ने, कलोल करदियां ने।
ਜਿਹੜੇ ਰਸੀਏ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਦਾ ਚਾਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਲਵੋ ਔਰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ, ਚਹੁੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ, ਗਾਈ ਪੂਤਾਂ ਨਿਰਧਨਾ, ਪੰਥੀ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊ ਦੇ ਪੂਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਥਿਕ ਹਨ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਗੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ, ਚਹੁੰ ਉਮਾਹਾ ਹੋਏ, ਨਾਗਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਰਸੀਆਂ ਗਰਦਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ, ਚਹੁੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ, ਗਾਈ ਪੂਤਾਂ ਨਿਰਧਨਾ, ਪੰਥੀ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ, 12 ਮਾਹ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ। 12 ਮਾਹ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਦਿ ਕਾਲ, ਮੱਧ ਕਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਕਾਲ, ਰੀਤੀ ਕਾਲ, ਭਗਤੀ ਕਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ। ਜੋ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਰੀਤੀ ਕਾਲ। ਰੀਤੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਖ ਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ, ਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਖੁਨ ਹਨ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੀਤੀ ਕਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਹੈ।
उस तो बाद का जिहड़ा वक्त है उसनों कहंदे ने आधुनिक काल। हुण मैं अर्ज करां, भगती काल दे विच करीब करीब बहुत सारे भगतां ने 12 माह नामक सिरलेख हेठ कवितावां लिखियां ने, पर उन्हां दे 12 माह दे सिरलेख हेठ जो कविता हुंदी सी ते उन्हां दे विच किसे ने राजे ते राणी नूं मुख रख के बोल उचारण कीते, कविता उचारण कीती कि जदों राजे ने बाहरले मुल्कां विच जाना युद्ध करन वास्ते, ते उहदी जो पटराणी है, उहदी जो इस्त्री है, वो हर एक महीने दे विच वो किस तरह अपने पति नूं याद करदी सी, उहदा वर्णन है। किसी ने जिक्र किया पति पत्नी का, किसी ने जिक्र किया प्रेमी प्रेमिका का, पर धन गुरु नानक साहिब ने जिक्र किया बनस्पति का। बनस्पति का धन गुरु अर्जन देव साहिब ने जिक्र किया आत्मा ते परमात्मा का, कि महीना होवे जेठ का आत्मा किवें तड़फदी है परमात्मा वास्ते, महीना होवे आषाढ़ का आत्मा किवें तपदी है परमात्मा वास्ते, जे महीना होवे सावन का तो आत्मा किवें तड़फदी है परमात्मा वास्ते, तड़फदी है। मैं ये अर्ज करां उस तो पहला एक दुनियावी गल, कोई भी मनुख अपने आप दे विच पूर्ण मनुख नहीं है, और कोई भी स्त्री अपने आप दे विच पूर्ण स्त्री नहीं है। आप जी ने कहना ज्ञानी जी ऐसा क्यों, एक पुरुष पूर्ण क्यों नहीं है? नहीं है। एक स्त्री पूर्ण क्यों नहीं है? नहीं है। क्योंकि हर एक दा शरीर बनिया है माता ते पिता दे नाल। किसी शरीर दे विच पिता दे गुण सूत्र, पिता दे अंश वाधू है, वो पुरुष है। किसी दे विच माँ दा अंश वाधू है, वो स्त्री है। पर कितना अनुपात होंदा है? कहते ने जे 60% गुण पिता दे ने, वो पुरुष है, वो मेल है। और जे किधरे 60% गुण माँ दे ने, फिर वो बेटी हो जाती है। तो जिहड़ी बेटी है उहदे विच 60% गुण माँ दे ने, 40% गुण पिता दे ने, ते स्त्री अधूरी है। जिहड़ा पुरुष है उहदे विच 60% गुण पिता दे ने, 40% गुण माँ दे ने, तो फिर वो पुरुष भी अधूरा है, अधूरा है। एक पुरुष तन करके संपूर्ण हो जावे, उहदे वास्ते एक विधि विधान ने जन्म लिया। एक स्त्री तन करके संपूर्ण हो जावे, एक विधि विधान ने जन्म लिया, और उस विधि नूं कहंदे ने आनंद कारज, उस विधि नूं कहंदे ने विवाह, उस विधि नूं कहंदे ने शादी। जदों शादी होई तो स्त्री अपने पुरुष नूं मिल के पूर्ण हो गई, और जो पुरुष सी अपनी स्त्री नूं मिल के पूर्ण हो गए ने। हुण दोवें पूर्ण हो गए ने। पर मैं अर्ज करा, तन दे तल ते पूरे हुए ने, मन दे तल ते पूरे नहीं होने वाले। मन दे तल ते हाले भी अधूरे ने, अधूरे। और यही कारण होंदा है कि झगड़ा चलता रहता है, सारी जिंदगी झगड़ा चलता रहता है, पति पत्नी का झगड़ा चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि तन करके तो पूर्ण हो गए ने, मन करके हाले अधूरे ने, अधूरे ने। तो मन करके पूर्णता किवें नसीब होवे? तो साहिब कहंदे ने हुण जीव आत्मा स्त्री है, परमात्मा पुरुष है। हुण इन्हां दा जे किधरे मिलन हो जावे तो मन करके भी संपूर्ण हो जाणगे।
तन करके दुनियावी पति बैठा है, मन करके परमात्मा पति बैठा है। पूरनता। तो साहिब कहते ने सावन सरसी कामणी, सरसी कहते ने खुश हो गई, जीवन दे विच रस आ गया। ऐसा की कुछ होया कि जीवन विच रस आ गया। साहिब कहते ने चरण कमल स्यों प्यार, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम पैदा होया। पर एक गल चेते रखना कि जो प्रेम साडे कोल है, जिवें एक पिता दा प्रेम पुत्र नाल, पुत्र दा प्रेम पिता दे नाल, पति दा प्रेम पत्नी नाल, पत्नी दा प्रेम पति दे नाल, कहते ने इस प्रेम दे विच वासना मौजूद है, मुस्तकीम कुछ लेन देन है। जे किधरे कुछ लेन देन नहीं होया तो कहते ने फिर वो प्रेम नफरत विच बदल जाता है। लेकिन गुरु नाल प्रेम कैसा होवे, निरंकार नाल प्रेम कैसा होए, कहते ने उहदे विच किसी भी किस्म की मंग नहीं चाहिए है, बस समर्पित हो जा। जदों मनुख समर्पित होंदा है फिर वो कहता है जो होआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो रहा है उनको कबूल है। तो जीव स्त्री फिर खुश होती है, कोई गिला शिकवा नहीं है। मन तन रता सच रंग, जो साडा मन है और तन है, तो अज बेशक रतिया होया है पर गुस्ताखी माफ कुसुम दे रंग दे नाल। क्योंकि दो किस्म के रंग होंदे ने, एक नूं कहंदे हैं कच्चा रंग, एक नूं कहंदे हैं पक्का रंग। जिहड़ा कच्चा रंग है देखण विच वो सानू अपने वल खिंचदा है, अपने वल। मैंने एक छोटी जी गल याद है, एक कपड़ा वेचण वाला, फेरी लगाने वाला बंदा, तो मैं उसनों एक सवाल पूछ बैठा कि जदों भी तुसी कपड़े लैके आंदे हो, बीबियां बहुत इकट्ठियां हो जांदियां ने, पुरुष एक भी इकट्ठा नहीं होंदा, एक भी नहीं कढ़ाउंदा, कारण की है? कहने लगे ज्ञानी जी एक कोई कारण है, स्त्री दी कमजोरी पकड़ लई है। कमजोरी की है? कहने लगे उन्होंने कपड़े चाहिए ने रंग बिरंगे, पर बेशक 2 दिन बाद उन्होंने रंग लै जाए कोई फिक्र नहीं है, पर रंग बिरंगे। कच्चा रंग होंदा है। होबहू उसी तरह ये जो जीव स्त्री है, जो जीव आत्मा है, ये भी रंग बिरंगे रंगों पसंद करती है, भावें दूजे दिन ही खत्म हो जाए, दूजे दिन। दुनिया के जितने भी रंग हैं, जे मैं इस तरह अर्ज करा, धन है रंग है, रुतबा है रंग है, रूप है ये भी रंग है। हुण की पता अज जो रूप है ये 2 घड़ी बाद रूप कैसा आ जाए, कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं। अज रुतबा है 2 घड़ी बाद ही खबर आ जाती है, रुतबे तो उसनों हटा देता, कच्चा रंग। तो जीव स्त्री इस रंग नाल मोहब्बत करती है जो कच्चा रंग है। साहिब कहते ने पक्के रंग नाल प्रीत जोड़, तो जे किधरे पक्के रंग नाल तेरी प्रीत हो जावे, मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। जे तन रंगिया जावे प्रभु दे प्रेम विच, तो तन सेवा विच जुड़ जाता है, सेवा दे विच। और जे किधरे मन रंगिया गया गुरु दे प्यार विच, तो फिर मन सिमरन दे विच जुड़ जाता है। फिर वाहिगुरु 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 दे बोल चल पैंदे ने। कल दी गल है, जदों रागी सिंह ने शब्द पढ़िया, मोरी रुण झुण लाया भैणे सावण आया, तो उहदे विच एक पंक्ति आउंदी है,
तैं साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे। कोई रब की गल सुना दे, मैं उसनों की देवां। कहते ने शीश वढ़े कर बैसन दीजे, विन शिर सेव करीजे। तो किसी ने मैनू सवाल पूछ लिया कि जो रब की सानू गल सुनावे तो अपना शीश वढ़ के उन्होंने आसन बना के दईए, उन्होंने बिठाईए, फिर बगैर शीश दे सेवा किवें करांगे असीं? शीश नहीं होएगा तो बंदे की तो मौत हो गई। तो मैं अर्ज की थी, शीश वढ़े कर बैसन दीजे, तो मुराद है तू निमरता दे बोल बोल उहदे नाल, जो तेनू रब की गल सुनावे, मिठी बोल बोल। विन सिर सेव करी जय, भाव जदों तू सेवा करें तो इस भाव दे नाल कि तेरे धड़ दे उत्ते सिर नहीं है, भाव हंकार नहीं है। हंकार दा सिर खत्म करना है, सेवा करना, सिमरन करना, हंकार नूं मिटाना है, तां करके मनुख कबूल होंदा है। तो साहिब कहते ने ये जितने भी रंग हैं, ये सारे दे सारे रंग ये लहर वांगू ने। बिखिया रंग कुड़ाविया, दिसन सभे छार। आप जी नूं खबर है जिहड़ा कल दा दिहाड़ा सी, भाई तारू सिंह दी शहादत का दिहाड़ा भी सीगा। 1720 विच आप जी का जन्म होया, भोला पिंड अमृतसर। भाई जोध सिंह जी, माता धर्म कौर। 1720 दे विच कुछ दिनों बाद पिता रुखसत कर जाते हैं, तो घर विच माँ होंदी है, आप होंदे ने ते भैन होंदी है। इतिहास लिखता है बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी तो बाद एक अजीब खेड हुई। जकरिया खान ने ऐलान किया कि जिथे भी कोई सिख दिस पवे उहदा शीश वढ़ के लियाना, उहदी मैं कीमत देवांगा, हर एक शीश की कीमत देवांगा, हर एक शीश का मुल मिलेगा। जितने वध शीश लेके आओगे उतना मुल मिलेगा, उतनी कीमत मिलेगी। तो सिंघां ने की किया, आप जी जंगलों के विच चले गए। जितने भी सिंह सन जंगलों में रह के मुकाबला करना है, टाकरा करना है। हुण जदों वो सिंह जंगलों में पहुँच गए तो लंगर चाहिए है, भोजन चाहिए है, रोटी चाहिए है। तो इतिहास कहता है कि कई बार धन गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लैके और 48 घंटे दे विच पाठ संपूर्ण करके उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पाठ भी सुनाया, क्योंकि पता नहीं होंदा सी किस वेले वैरी आ जाण। तो छेती तो छेती पाठ भी सुनाते सी, फिर लंगर का बंदोबस्त भी कोई ना कोई सिंह करदा सी। बहुती सेवा भाई तारू सिंह करते सी। जकरिया खान तक खबर पहुँच जाती है, आप जी नूं गिरफ्तार कर लेंदे ने और कहते ने तारू सिंह जी तेरे ते ये इल्ज़ाम है, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ नाल साडा टाकरा चल रहा है, जिन्हां नूं असीं मुकाउण की कोशिश करते पे हाँ, उन्हां नूं तू लंगर छकांदा है। ये तेरे ते गुनाह है, इल्ज़ाम। हुण स्पष्ट जी गल है, जां तां इस्लाम धर्म कबूल कर, जो कुछ भी चाहिए है तेनों देने वास्ते तैयार हाँ, नहीं तो फिर तेरे केस कतल कर दिते जाएंगे।